Hello students, we have last 30-40 days for CAT going on right now. So it becomes very important कि last class में आप ऐसी क्या चीजें करते हो which is going to increase your scores. So today's video we will particularly discuss about the LRDI section जहाँ पे engineers, non-engineers किसी को भी कुछ advantage नहीं मिलता है. Everyone is at the same level. Okay. So yes, definitely, especially for non-engineers आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है LRDI में कि आप अच्छे से अपना स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हो by attempting very less questions. So आज की वीडियो में let's go ahead okay and quickly check what all things you should do in the last 1 month. Yes, make sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन भी दबा दिया है so that you are getting all these guidance videos and updates on a regular basis. Now first thing first, अगर मैं पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं ऑब्वियसली ओके नो वी नो दैट लास्ट ईयर क्या आया था, इस बार क्या होने वाला है वी डोंट नो बट वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम. ओके सो LRDI लाइक अराउंड 20 क्वेश्चंस ओके इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम. और जो 20 क्वेश्चंस आए थे last time okay that was overall okay in 4 sets. Okay, so you had like 2 DI sets okay which were like 4 questions each and there were 2 LR sets which was 6 questions each. अब होने में ये भी हो सकता है इस बार कि एक LR 6 क्वेश्चंस का, एक LR 4 क्वेश्चंस का, एक DI 6 क्वेश्चन का, एक LR एक DI 4 क्वेश्चंस का हो सकता है. बट एनीवेज ओके राइट नाउ वी कैन नॉट डिस्कस ऑन दैट मच. ओके बट मोर और लेस व्हाट वी नो इज कि आपको 4 से 5 सेट्स ही आएंगे, ज्यादा चांसेस 4 सेट्स के ही हैं. ओके नाउ हाउ डू यू गो अबाउट इट. ओके सबसे पहले आपको LRDI में आपने कई बार सुना होगा दैट देयर इज नो डिफाइंड सिलेबस. Definitely there is no defined syllabus for it, there is no concept list for it, but there is definitely a list of the type of LR sets that has come prior in CAT papers. So अगर आप देखोगे linear arrangement types questions आ चुके हैं, critical path जिसको हम कहते हैं flow chart types okay यहाँ पे road का pipe network के बारे में कुछ होता है, data distribution type of puzzles okay where let's say a set of data is there which is distributed okay based on certain logic which is given to you. For example, one of the very standard question was ERDOS number की एक number है, उस कोड आपको दिया गया है नो फॉर डिफरेंट पीपल हु आर देयर इन दैट इवेंट, और वो कोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेस्ड ऑन द क्लूज व्हिच आर गिवन टू यू. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. नंबर बेस्ड पजल में भी आप डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को काउंट कर सकते हो, बट नॉर्मली नंबर बेस्ड पजल्स आर प्योरली नंबर ड्रिवन लॉजिक, जहां पे हो सकता है कभी कभी नो यू कैन हैव लाइक PNC का भी लॉजिक लग जाता है, एवरेजेस का लॉजिक लग जाता है, परसेंटेजेस का लॉजिक लग जाता है. गेम्स एंड टूर्नामेंट्स ओके इज आल्सो अ काइंड ऑफ नंबर बेस्ड पजल जहां पे गेम्स टूर्नामेंट्स के कुछ रूल्स लगते हैं. बट द एडवांटेज विद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज ओके इफ यू नो सर्टेन रूल्स ऑफ गेम्स लाइक चेस, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, सो अगर उस गेम के ऊपर वो वाला क्वेश्चन आया है देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग द क्वेश्चन एंड देयर आर सर्टेन वेरी टिपिकल टाइप ऑफ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स क्वेश्चंस which by the way we have done in our MBAP workshops as well. Okay, investment type again people who have basic clue about how stock market works, okay how dividends are you get dividends okay in a share market and all that. तो ये सारी चीजें भी आपको काफी कुछ हेल्प करेंगी. Okay, Venn diagram is also there. Venn diagram normally if it comes okay it's normally on a trickier side okay where you have to make a lot of equations and students okay normally skip this kind of the CAT level of Venn diagram. नॉन कैट में तो इजी आ रहा है बट कैट लेवल में थोड़ा टफ हो जाता है. Now these are tough some of the types of you can say the LRDI puzzle sets that you get. But यहाँ पे अगर मैं देखूं identify your strength and weak area, that means you should know like what type of LR sets you are more comfortable in. How can you identify that? Obviously by doing practice, that is the only way कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका दिमाग फास्ट चलता है, कहीं आपको लगता है कि नहीं इस टाइप के प्रॉब्लम में मुझे उतना कंफर्ट जोन नहीं है मेरा. सो आप अपना टाइप ऑफ LR सेट DI सेट जो भी है ना वो थोड़ा प्रैक्टिस करने में आइडेंटिफाई कर सकते हो. दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन योर क्वेश्चन सिलेक्शन. ओके प्रैक्टिस इजी टाइप ऑफ इजी सेट्स ऑफ ऑल द टाइप्स. ओके बेसिकली आई मीन इफ यू गो टू द प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर सेट में, हर पेपर में, हर स्लॉट में ऑब्वियसली देयर इज 1 or 2 सेट्स व्हिच आर रिलेटिवली इजियर देन द अदर 2 सेट्स. ओके सो आपको जो वो एक दो सेट जो इजी है, अगर वो वेन डायग्राम पे है, अगर वो गेम्स टूर्नामेंट्स पे है, जिस पे भी आ रहा है, DI पे भी है अगर, और अगर आपका DI अच्छा नहीं है तो भी आप उसको कर सकते हो अच्छे से. ओके सो उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेली 3 to 4 सेट्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ओके यू आर डूइंग दैट. ये 3-4 सेट जो आपको करना है इसको प्रीवियस ईयर पेपर से करिए. MBAP हैज गिवन यू द प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ड ऑन द टॉपिक वाइज. यूज दैट टॉपिक वाइज LRDI के हमने सेट्स दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर के. गो एंड सॉल्व इट. ये जितने भी टाइप्स दिख रहे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइप्स वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्रीवियस
previous year paper and given you those specific material. So जाके अगर आपने previous year topics को open करके आपने MBA material में अगर कर लिया है अपने CAT के questions, that is the best source right now कि आपने actual CAT के questions भी कर लिए और उसको topic wise bifurcation करके आपने practice कर ली, so that you will have that idea of what type of questions you are good, what type of questions you face more challenges. Coming to the part of analysis. अब यहाँ पे एक चीज ये बहुत जरूरी है, स्पेशली दिस थर्ड पॉइंट विच सेज दैट मास्टर द स्किल ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली लेट्स से द केस ऑफ 4 सेट्स दैट यू आर गेटिंग, जैसे हम लास्ट ईयर का सेट बात करते हैं तो पहली चीज तो आप ये देखते हो कि वो एलआर है कि डीआई है, कौन से टाइप का आपको वो सेट मिला है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू आइडेंटिफाई. द सेकंड थिंग दैट यू विल सी इज हाउ लेंथी इट इज. आप देखोगे कि कितना लेंथ वाइज कितना लंबा है कितना छोटा है वो, और ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट सेट और नॉट. ओके, ये थर्ड चीज है जो आपको वहां पे काम आएगी कि एलआर डीआई भी आप देख रहे हो, आप लेंथ देख रहे हो और आप अंडरस्टैंडिंग का लेवल देख रहे हो कि क्या है यहाँ पे. Now the point is length should never be a criteria. Length should never be a criteria. Always and always you should have the criteria which is are you able to understand that particular set or not. That is the main clue. अगर आपको set समझ में आ रहा है, if it is LR, if it is DI, definitely go ahead with that. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं मेरा DI अच्छा नहीं है तो मैं DI नहीं करूंगा, बट अंडरस्टैंड अगर आपको DI के ऊपर एक बहुत इजी सेट मिला है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, जस्ट बिकॉज यू हैव अ मेंटल ब्लॉक फॉर DI तो आप उसको स्किप कर दोगे, विच इज नॉट अ गुड आइडिया. तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, okay, that these are the 3 things that you should take care, okay, while you are doing the question selection, the set selection, and also you can do an analysis check. Okay, आप comparative analysis कर सकते हो with regards to what other students did in that particular mock. आपको दिखेगा कि जो सेट आपने किया है वो बाकी सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था नहीं किया था, अगर कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितने लोगों ने उसको सही अटेम्प्ट किया, इससे भी आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कौन सा सेट राइट किया है. दैट सेट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो हो सकता है कि इजी सेट हो. Okay, now going ahead, okay, with more steps that you take, definitely जब आप स्टार्ट करते हो you should target to get one set completely right. Okay, इसका मतलब कि आप चारों सेट को स्कैन करके वो एक सेट ढूंढ के निकालते हो और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे रखना है आपको कि लास्ट के एक महीने में मैं एक सेट को करके अगर मैं completely right लेके आता हूँ. Okay, let's say you're doing this in the first 1 week, okay, towards the last month में जो 4 हफ्ते हैं, पहले वीक में ये टारगेट रखो कि मैं डेली प्रैक्टिस कर करके मैं इस लेवल पे पहुंचूंगा कि मैं यहाँ पे जो एक सेट जो सबसे इजी है वो आइडेंटिफाई करूंगा, उसको कंप्लीटली राइट लेके आने की कोशिश करूंगा. टेक अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द सेट्स, ओके, एंड यू कैन आइडेंटिफाई 2 सेट्स जिसके अंदर से आपको एक सेट करना है. ठीक है, सेकेंड लेवल ये है कि आपने एक सेट तो पूरा सॉल्व कर लिया है, अब जो दूसरा सेट है उसके फ्यू क्वेश्चंस राइट कर लो. Now what can be these few questions? Now when you see that some questions are having some conditional base, okay, तो आपको दिखता है वहां पे कि वो if statement लगा हुआ है, if this is happening then what, okay, वहां पे cannot be determined जैसे options है, तो हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़े, but there are 1 or 2 क्वेश्चन जिसको अगर आपने LR सेट आधा भी सॉल्व किया या DI आधा भी सॉल्व किया है तो भी आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो टारगेट ये होना चाहिए कि आपने पहले एक सेट कंप्लीटली कर दिया है और दूसरे सेट के आप 1-2 क्वेश्चन भी राइट करते हो, स्टिल यू विल सी अ मेजर जंप, ओके, इन योर परसेंटाइल. तो दिस इज द सेकंड स्टेप. ओके, अगर आप पूरा सेकंड सेट राइट नहीं कर पा रहे हो तो कोशिश करो कि आप कम से कम 1.5 सेट तक तो पहुंच जाओ. ओके, आफ्टर दैट ओके कम्स द पार्ट, ओके, जहां पे आप देखते हो कि और एक लेवल आप आगे बढ़ जाओ, 2 या 2.5 सेट करने का देखो. यू नीड टू डिक्रीज द टाइम ऑफ सॉल्विंग द सेट. दैट मींस आप जो पहला सेट जो इजी सेट कर रहे हो उसको इवेंचुअली टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करो. ट्राई टू थिंक कि इसको और फास्ट करने का कोई तरीका है. ब्रिंग दैट इन डाउट क्लियरिंग. ओके, वी विल सॉल्व दैट फॉर यू सो दैट आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को और जल्दी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. फ्रॉम लास्ट टू लास्ट यही आपका टारगेट होता है कि आप 2.5 सेट्स भी अगर आप कर लेते हो, यू आर रीचिंग अ 99 percentile definitely out of the 4 sets. Okay, so understand this is the third step, okay, which is the final step, okay, in the preparation. But अगर आप step 3 तक नहीं भी पहुंचते हो, एक महीने में अगर आप स्टेप 2 तक भी पहुंच जाते हो जहां पे आप 1.5 से 2 सेट कर रहे हो, you will definitely clear the cutoff for the top IM. So work on these points. This is definitely going to help you. और अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए, please put that in the comment section. We'll be there to help you with that. All the best.